Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is unit number 6, last unit of the syllabus, international trade. And the first topic of international trade is comparative and an absolute advantage. Comparative advantage says that when countries are able to produce a good or service with lower opportunity cost, it is not possible for a country to survive without international trade because resources are not endowed equally. Some countries have some resources more than the other countries. Other countries have some resources which are more than the other countries. Like Pakistan has more fertile land, whereas Europe has more fertile brain. They are good in technology, and when it comes to Middle East, so they are good in oil, gas, and petroleum products. So every single country has a different product in which they have specialized. So the benefit of specialization can only be exploited among the countries if they trade. So countries must produce, specialize, and export the products in which they are good at. For example, Pakistan is good in production of agriculture, so Pakistan must be producing agriculture products and specialize and export and import the goods in which we are not good at. Okay, so this can be determined with the help of comparative advantage, which says that countries must produce the goods and services in which they are good at, like in which their opportunity cost is lower. Some countries have higher opportunity cost of producing a good service. Some of the countries have a lower opportunity cost of producing the same product. So countries must identify first of all their comparative advantage, that in which products their opportunity cost is lower, for which product their opportunity cost is higher. So products in which their opportunity cost is lower, they must produce those goods only. So comparative advantage is an advantage that countries may gain from lower opportunity cost. So there are two bases of international trade. One is comparative advantage, other is absolute advantage. And both are based on the efficiency of the country's factors of production. If a country is able to produce a good or service with lower opportunity cost as compared to its trading partner, okay, so the country is said to have a comparative advantage. So when a country is able to produce a good or service with lower opportunity cost as compared to its trading partner, okay, as compared to trading partner, need to be added over here. This need to be added over here. As compared to its trading partner, the country is said to have a comparative advantage. For example, Pakistan and USA are trading partner, and the opportunity cost of producing 1 ton of wheat is, for example, 5 tons for Pakistan, 5 tractors for Pakistan. 1 ton of wheat is 5 tractors for Pakistan, and for the US, the opportunity cost of 1 ton of wheat is, let's say, 15 tractors. It means that if we produce 1 ton of wheat, we have to give up 5 tractors. And if US produce 1 ton of wheat, they have to give up 15 tractors. It means USA is good at production of tractors, and Pakistan is good in production of wheat. So if it is, then Pakistan must specialize in wheat, US must specialize in tractor, and in the end, they both produce both the goods and then trade, and that's going to have a benefit to both the countries. Both the countries will have both the goods more after the trade. So countries must specialize in the goods in which they have a lower opportunity cost. This is what is known as comparative advantage. Professor Ricardo has developed this theory, and there are several assumptions of this theory upon which the countries may trade and can gain from comparative advantage, and that can be countries. The factors must be mobile. They must be producing both the goods, and there must not be any difference in exchange rate. Quality of product must be the same, because the quality of wheat that we produce in Pakistan is different than quality of wheat that is produced by the US. Similarly, quality of tractors that we produce here are different than quality of tractors produced by the US. Sometimes due to change in quality of the product, countries may refuse to trade, even they have comparative disadvantage. Countries may not be willing to trade at all. ठीक है, स्पेस छोड़ दे इसके लिए, और उसके बाद आगे आ जाए assumptions of Ricardian model of comparative advantage.
So Professor Ricardo has developed this whole theory, and it's a two country and two product model, and assumptions are that there are two countries in the world. So countries do not have any other option. Countries do not have any other option to trade. दो countries हैं, ये दोनों आपस में trade करेंगी, ठीक है? उसके अलावा both the countries producing two goods only. So it's a two product, two countries model. तो कोई सी दो product हम select कर लेंगे. Factors of production are perfectly mobile. Means the factor which can produce wheat can produce tractor with the same efficiency, but there is no difference in efficiency, which is practically, logically बात करें तो it is not that possible, but this is how it is. So full employment of resources, all the resources employed. Both the countries use half of their resources to produce each good. And there is no transportation cost, and there is no difference in the exchange rate. There is no trade barriers as well. And the quality, no difference in quality of the product as well. So these are the few assumptions that we make whenever we make. अच्छा कोई सा भी मॉडल हम बनाते हैं ना, उस मॉडल में हमेशा assumptions होती हैं. जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक मॉडल है, तो उसमें भी assumptions होती हैं कि रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं, फैक्टर्स मोबाइल हैं. अगर फैक्टर्स मोबाइल ना हो, रिसोर्सेज अगर फुली यूटिलाइज ना हो, तो पीवीसी ड्रॉ ही नहीं हो सकता. तो पीवीसी को भी ड्रॉ करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ता है कि रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं और फैक्टर्स आर मोबाइल. तो अगर फैक्टर मोबाइल नहीं है तो नहीं पॉसिबल. ठीक है, अब इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, आप सारा इसको कॉपी कीजिएगा. ठीक, अब समझ लें यहाँ पे कोई इशू है तो साथ साथ पूछते रहे मुझसे. ओके, सो रिकॉर्डिंग मॉडल में टेबल नंबर 1, इट इज टोटल आउटपुट विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. टोटल आउटपुट विदाउट स्पेशलाइजेशन एंड विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान यूएसए प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड ट्रैक्टर्स, और पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है 100 टन्स ऑफ व्हीट, ओके, एंड पाकिस्तान प्रोड्यूस 500 ट्रैक्टर्स. यूएस प्रोड्यूस 50 टन्स ऑफ व्हीट बट 750 ट्रैक्टर्स. तो इस तरह से हमारी टोटल आउटपुट जो है वो आ जाएगी कितनी, 150 टन्स ऑफ व्हीट दोनों कंट्रीज में मिला के, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास ट्रैक्टर्स जो है वो 1250 आ जाएंगे. बट रिमेंबर कि ये 50% ऑफ रिसोर्स यूज किए हमने, ओनली 50% ऑफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस ईच गुड. ठीक, अब हमें ये देखना है कि किस कंट्री को किस प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है. उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो, डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशोस, ताकि पता लगे किस कंट्री के पास क्या एडवांटेज है. तो रेशो निकाला हमने व्हीट एंड ट्रैक्टर का, तो ये आ रहा है जनाब 1:5 एंड 1:15. 1:5 एंड 1:15. इसका मतलब है पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ व्हीट इज 5 ट्रैक्टर, यूएस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ व्हीट इज 15 ट्रैक्टर्स. तो पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लोअर, तो पाकिस्तान मस्ट हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. लेकिन अब दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर में किसको एडवांटेज है. तो एक तो रेक्टिफिकेशन वाली बात है, वो ये है कि इफ वन कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन वन गुड, द अदर कंट्री विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द अदर गुड. बिकॉज रिकार्डो वाज मैथमेटिशियन, और इस मैथ्स में ये पॉसिबल नहीं है आई एम सॉरी कि वन कंट्री में हैव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स. ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो अगर हमें अदरवाइज करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसको 1/5 एंड 1/15. तो 1/5 का मतलब है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है 0.2 ऑफ 1 टन ऑफ 1 ट्रैक्टर, 0.2 टन ऑफ व्हीट, एंड 1/15 जो है ये हमारे पास आ रहा है 0.06 opportunity cost. So as you can see that opportunity cost of producing tractor is lower for the US and for Pakistan it is higher. ठीक है, लेकिन आज के बाद से आपने रट्टा लगा लेना है, वो ये है कि countries which have comparative advantage in one good will have comparative disadvantage in the other good. If a country has comparative advantage in one good, the trading partner, the other country, will have comparative advantage in the other good. ये rule of thumb हो गया आज के बाद से. ठीक, इसके बाद पाकिस्तान हैज कंपैरेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हीट ओनली, एंड यूएसए विल प्रोड्यूस ट्रैक्टर ओनली, बिकॉज दे बोथ हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द रिस्पेक्टिव गुड्स. टेबल नंबर 3 में हम देखते हैं आउटपुट आफ्टर स्पेशलाइजेशन. अब क्योंकि हम स्पेशलाइज कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दीज टू गुड्स ओनली. ठीक है, ओनली वन गुड ओनली.
यानी पाकिस्तान जो है अब अपनी 100% रिसोर्स यूज करेगा टू प्रोड्यूस व्हीट. सो विद 50% रिसोर्स वी कैन प्रोड्यूस 100 टन्स ऑफ व्हीट. सो विद 100% रिसोर्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस 200 टन्स ऑफ व्हीट, बट डेफिनेटली कैन नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रैक्टर बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर प्रोड्यूसिंग व्हीट ओनली. इससे किसे यूएस जो है वो प्रोड्यूस करेगा सिर्फ ट्रैक्टर और उसके पास व्हीट नहीं होगा. लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि हमारे पास टोटल व्हीट कितनी आ गई 200 और टोटल ट्रैक्टर कितना आ गए 200 एंड टोटल ट्रैक्टर 1500. पहले व्हीट कितना था हमारे पास, इट वाज 150. ट्रैक्टर कितने थे हमारे पास 1250. तो नाउ वी हैव 50 मोर टन्स ऑफ व्हीट एंड 250 मोर ट्रैक्टर्स. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन. अब इसका फायदा विल ओनली बी देयर इफ कंट्रीज ट्रेड. जो पाकिस्तान के पास ट्रैक्टर नहीं है, यूएस के पास व्हीट नहीं है, ट्रेड होगी तो बेनिफिट होगा, ट्रेड नहीं है तो स्पेशलाइजेशन का फायदा नहीं होगा. दुनिया को फायदा ट्रेड का स्पेशलाइजेशन का उससे होता है जब ट्रेड होती है. टेबल नंबर 4, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, व्हीट एंड ट्रैक्टर. ठीक है, 50 मोर टन्स ऑफ व्हीट इज देयर एंड 250 मोर ट्रैक्टर्स. अब आते हैं ट्रेडिंग रेशो. अब ट्रेडिंग रेशो मस्ट बी बिटवीन डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो. देखो अब ये ट्रेडिंग रेशो देखें आप 1:5 एंड 1:15 वाला देखो. तो 1:5 का मतलब ये है कि अगर यूएस पाकिस्तान को ऑफर करता है कि वी प्रोवाइड यू 4 ट्रैक्टर, हाउ मेनी 4 ट्रैक्टर, आप हमें 1 टन ऑफ व्हीट दे दें. कि पाकिस्तान व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यूएस ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूएस से हमें ट्रैक्टर ऑफर करेगा. अगर वो हमें ये ऑफर करता है कि वी प्रोवाइड यू 4 ट्रैक्टर, यू प्रोवाइड 1 टन ऑफ व्हीट, तो क्या पाकिस्तान को एग्री करना चाहिए इस चीज के ऊपर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि 5 ट्रैक्टर तो हम खुद प्रोड्यूस करेंगे इस 1 टन ऑफ व्हीट. तो व्हाई डू वी एक्सेप्ट 1 टन ऑफ व्हीट फॉर 4 ट्रैक्टर्स? व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस विद आवर ओन रिसोर्सेज? हम 1 टन व्हीट प्रोड्यूस नहीं करते, हम ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर लेते हैं इससे. तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ठीक है, बोथ द केसेस हम ट्रेड करें या ना करें, हमें 1 टन ऑफ व्हीट गिव अप करना पड़ रहा है. तो व्हाई डोंट वी गिव अप 1 टन ऑफ व्हीट फॉर 5 ट्रैक्टर? व्हाई डू वी गिव अप अवर व्हीट फॉर 4 ट्रैक्टर्स? तो ये तो पॉसिबल नहीं नजर आ रहा. अगर यूएस हमें 5 ट्रैक्टर भी ऑफर करता है, हम तब भी एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे, हम अपनी रिसोर्सेज से खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हाई डू वी इंपोर्ट? आप इंपोर्ट ड्यूटीज भी पे करें, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करें और उनका एहसान भी लें. क्यों भाई, किस बात का? ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं, हम खुद कर लेंगे. बट इफ दे ऑफर अस 6 ट्रैक्टर्स, देयर इज अ बेनिफिट नाउ. देयर इज अ बेनिफिट नाउ. अब हम शायद उसे एक्सेप्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, ठीक है यार देखो इस पर कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं. लेकिन 4 या 5 पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, यानी जो रेशो आपके पास है उस पे और उससे बिलो रेशो पे हम पॉसिबल नहीं है ये वाली. दूसरी तरफ पाकिस्तान यूएसए को ऑफर करे कि वी प्रोवाइड यू 1 टन ऑफ व्हीट एंड यू प्रोवाइड अस 16 ट्रैक्टर्स. ठीक है, तो यूएस बोलेगा भाई मैं आपको 16 ट्रैक्टर किस बात के दूं? 16 ट्रैक्टर का मतलब ये है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा, व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस व्हीट आवरसेल्फ? हमें 1 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए 15 ट्रैक्टर गिव अप करने पड़ रहे हैं ना. पाकिस्तान से लेंगे तो हमें 16 ट्रैक्टर गिव अप करने पड़ रहे हैं. तो अवर कॉस्ट इज हायर इफ वी इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान. अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ भाई, नहीं कर रहे. गॉट इट? सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 16 ट्रैक्टर्स. If Pakistan offered them 1 ton of wheat for 15 tractors, even then US may not be agreed. But if Pakistan offered them 1 ton of wheat for 14 tractors, there may be a consideration of trade. लेकिन 15 या 15 से ऊपर तो पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब है जो भी हमारा ट्रेडिंग रेशो होगा आपस में डिसाइड करेंगे कि किस रेट पे हम ट्रेड करेंगे, दैट हैज टू बी बिटवीन 5 and 15. It must not be more than 15 but not be less than 5. So 5 or less than 5 acceptable नहीं है, 15 or more than 15 भी acceptable नहीं है. It has to be between 5 and 15. Not 5, not 15, but between them. Got it? So between domestic opportunity cost ratio का मतलब हमने लिया 1:10, which is exactly between 5 and 15. It can be anything. मैंने ऐसे बस ले लिया नंबर. ठीक है, अब टेबल नेक्स्ट शो करता है हमें कि ट्रेड कैसे करते हैं. अब पाकिस्तान यूएसए व्हीट एंड ट्रैक्टर, टेबल नंबर 5. अब हमारे पास बिफोर द ट्रेड पाकिस्तान के पास देयर वाज 100 टन्स ऑफ व्हीट. स्पेशलाइजेशन के बाद हमारे पास आ गई 200 टन्स ऑफ व्हीट. अब इस 200 में से अगर हम 70 टन एक्सपोर्ट कर दें, मैंने से रैंडम निकल लिया है, ठीक है, तो हमारे पास कितना व्हीट बचेगा? 130.
ठीक है, हमने एक्सपोर्ट कितना किया 70, ट्रेडिंग रेशो का डिटरमिन किया 1:10, इफ वी एक्सपोर्ट 1 विल इंपोर्ट 10, ठीक है, तो 1 टन ऑफ व्हीट के अगेंस्ट 10 ट्रैक्टर का रेशो हमने डिसाइड कर लिया, दोनों कंट्री का एग्रीमेंट होगा इसके ऊपर क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान विल इंपोर्ट 10 टाइम्स मतलब 700 ट्रैक्टर्स। अब यूएसए के पास 1500 ट्रैक्टर्स थे, अगर पाकिस्तान उसमें 700 इंपोर्ट कर लेता है तो यूएस के पास कितने बचे 800। तो इस तरह से ये 200 और 1500 जो हमारे पास टोटल आउटपुट आई थी उसको हमने आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया। जब हम शेयर कर रहे हैं तो हम यहां से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास क्या था 100 टन ऑफ व्हीट, अब कितना आ गया 130, यूएस के पास कितना था 50, अब कितना आ गया 70। तो पाकिस्तान के पास 30 मोर टन ऑफ व्हीट है, यूएस के पास 20 मोर टन ऑफ व्हीट है। इससे किसे पाकिस्तान के पास कितने 500 ट्रैक्टर अब कितने हो गए 700, यूएस के पास कितने 750 अब कितने हो गए। इसका मतलब है यूएस ऑल्सो हैव बोथ द गुड्स मोर आफ्टर द ट्रेड। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेड। अगर हम टेबल नंबर 6 यहां बना लें, गेन टू ईच कंट्री, तो वो क्या बनेगा हमारे पास व्हीट ट्रैक्टर्स पाकिस्तान यूएसए। सो हमारे पास पाकिस्तान विल हैव 30 more tons of wheat, USA will have 20 more tons of wheat, Pakistan will have 200 more tractor and USA will have 50 more tractor। इस तरीके से 250 ट्रैक्टर से ये हमने आपस में शेयर कर लिए, which was the gain of international trade। और ये 50 more tons of wheat थी, ये भी हमने आपस में शेयर कर ली, किस रेशो में 1:10 के रेशो में, ठीक है। सो इट मीन्स दैट both the countries will have both the goods more after the trade। This is the Ricardian model of comparative advantage। I hope you understand। ठीक है, अब जाहिर बात ये comparative advantage हमने लिया है, तो अब इसके लिए एक ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, यानी वी कैन कंज्यूम एनीथिंग आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्लोथिंग एंड फूड है ऑफ वन कंट्री एंड अदर कंट्री, दिस इज क्लोथिंग एंड फूड फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंट्रीज हैव टू स्पेशलाइज, जो कंट्री स्पेशलाइज करेंगी तो इनकी स्पेशलाइजेशन किस तरह से होगी कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट डायग्राम में देखें, कंट्री ए कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, ठीक है, यानी कंट्री ए जो है वो आउटसाइड पीपीसी प्रोडक्शन नहीं कर सकती, यानी कि 770 फूड वो कंज्यूम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर दोनों कंट्री स्पेशलाइज कर लें, दोनों कंट्रीज अगर ने स्पेशलाइज कर लें इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, यानी कंट्री बी जो है वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करे फूड, और कंट्री ए जो है वो क्या प्रोड्यूस करे वो सिर्फ क्लोथिंग, तो दोनों कंट्रीज की टोटल आउटपुट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो गई। तो ये अब देखें, दोनों कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो 100 कंज्यूम कर सकें, लेकिन अब दोनों कंट्रीज 100 कंज्यूम कर सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व इन विच बोथ द कंट्रीज, अब ये दोनों कंट्रीज का ले लिया। अब कंट्रीज ए और बी, यानी कंट्री ए जो है वो पॉइंट ए पर कंज्यूम कर सकती है, कंट्री बी जो पॉइंट बी पे कंज्यूम कर सकती है। अगर ट्रेड ना करें तो ये दोनों एक्स पर नहीं आ सकते, ट्रेड करने के बाद दे बोथ कैन मूव टू एक्स, got it? So this is simply known as what trading possibility curve, that shows that after trade countries trading possibility will shift outward, and that is how both the countries can have both the goods more after the trade, ठीक है। both the countries will have both the goods more, can consume outside their production possibility curve, this is known as trading possibility curve। absolute comparative advantage, अब absolute advantage की बात करें तो absolute advantage का मतलब होता है when country is more efficient in production of a good or service, यानी उसकी efficiency of a good or service जो है वो higher आ रही है। अगर किसी कंट्री की efficiency of good or service higher आ रही है तो हम कहते हैं इस कंट्री के पास absolute advantage है, यानी कि अगर एक फैक्टर पाकिस्तान का है, एक फैक्टर यूएसए का ले, फैक्टर only one factor, and one factor of Pakistan producing more than the factor in producing USA, so Pakistan will have an absolute advantage। Comparative advantage is about the opportunity cost, and absolute is about productivity, ठीक है। अगर एक फैक्टर की प्रोडक्टिविटी हायर है तो कंट्री विल हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। कंप्यूटर ट्रेडिंग पार्टनर
other words, the factor of production more efficient as compared to the factor in the trading partner. ठीक है, said to have an absolute advantage. A country may have an absolute advantage in both the goods. ये possibility है, दोनों goods ज़्यादा produce करती है, उसके दोनों goods में absolute advantage है, लेकिन comparative advantage सिर्फ एक product में होगा. ठीक है, for engineer Pakistan produced 10 computers in a day in Pakistan, whereas China, they produce 15 computers a day. So China will have an absolute advantage in production of computers as compared to Pakistan. तो इसका मतलब चाइना को जो है वो स्पेशलाइज करना चाहिए कंप्यूटर्स में, और हमें स्पेशलाइज करना चाहिए उस प्रोडक्ट में जिसमें हमारी कंपैरेटिव या फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज है. अब लिमिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, अब हमने ड्रॉ तो कर लिया सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि सम गवर्नमेंट में वांट टू अवॉइड ओवर स्पेशलाइजेशन. यानी अगर आप समटाइम ऐसा होता है कि इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं मार्केट में डिमांड नहीं होती इसकी, इसको ओवर स्पेशलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो कंट्रीज अवॉइड करती हैं ओवर स्पेशलाइजेशन, इस वजह से वो स्पेशलाइज नहीं करती. बहुत सारी कंट्रीज इस वजह से स्पेशलाइज नहीं करती. हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब आपने स्पेशलाइज तो कर लिया, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हुई तो ट्रेड का फायदा नहीं होगा. यानी जितना भी फायदा सारा ट्रांसपोर्ट में दे दें तो क्या फायदा होगा ट्रेड करने का. ठीक है, जबकि कंपैरेटिव एडवांटेज का जो मॉडल था, रिकार्डेड मॉडल, उसमें हमने अज्यूम किया था कि देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है, और देयर इज नो एक्सचेंज रेट एज वेल डिफरेंस. और अगर एक्सचेंज रेट डिफरेंट है तो उससे भी प्रॉब्लम आएगा, उससे भी आएगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर आ रही होगी, लेकिन जब आप इंपोर्ट करोगे तो इतना हैवी डिफरेंस एक्सचेंज रेट का आ रहा है कि वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी उसकी. ठीक है, अदर कंट्रीज में इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. कंट्रीज को अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस करना होता है, उसके लिए वो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाती है. कंट्रीज को अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम फॉरेन कंपैरेटर्स. तो इस वजह से क्या होता है, इनको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है. रिसोर्सेज आर नॉट परफेक्टली मोबाइल, ये भी आपको पता है कि वो रिसोर्स जो ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रही है वो रिसोर्स वीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन हमारी अजम्पशन होती है कि रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल. कंट्रीज डू नॉट ऑलवेज एडॉप्ट चेंजेस. ठीक है ना, यानी इवन अगर पाकिस्तान के अब पाकिस्तान के पास अगर कंपैरेटिव एडवांटेज है इन एग्रीकल्चर, तो दूसरी कंट्री को अगर कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाए एग्रीकल्चर में, तो हम अपना एग्रीकल्चर नहीं छोड़ेंगे कि हमारी फिक्स रिसोर्सेज है. तो अगर ऐसा हो भी गया तब भी हम नहीं करेंगे. तो कुछ कंट्रीज जो हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन को नहीं छोड़ती, इवन दो के अदर कंट्री भी इसमें स्पेशल करते हैं, नहीं हमारी स्पेशलाइजेशन हम इसी में करेंगे. तो ये भी पॉसिबल नहीं होता कि कंट्रीज जो है वो चेंज अडॉप्ट कर ले, वो नहीं होती, पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज. इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ तक रखते हैं इसको. ठीक है, और अब इसके MCQs पे बात करते हैं.